आप कर सकते हैं आप। Yes, sir. ओके, तो कल कुछ पढ़ाई की थोड़ी बहुत? Yes, sir. गुड, शुरू करते हैं ना, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आज ध्रुव कहीं बिजी होंगे। एक मिनट में शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन। ओके, तो हम लोग कल कहाँ थे? हमने थोड़ा सा वी स्टार्टेड इनिशियली अबाउट फाइनेंसिंग। We discussed need for accounting, objective of accountings. I think so. We could discuss Yes, on sir. that. Yes, sir. So, definition and scope of accounting. See, as it is very important term for commerce as well as management. So definitely, many philosopher, many academicians has defined what is the scope of accounting. If you see, American Accounting Association also define accounting. They said accounting as the process of identifying, means first step is identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgment and decision by user of the information. This definition stresses three aspects. One is identifying, second is measuring, and third is communicating economic information. One definition is also given committee on terminology appointed by American Institute of Certified Public Accountants. According to that, accounting is the art of recording, classifying, and summarizing. Here also three important key factors. One is recording, second is classifying, and third is summarizing. If we summarize, there are many other definitions also given. If we summarize that what can be outlined for the accounting. So the above definition clearly bring out the scope of accounting, and this can now be outlined as follows. One is accounting is concerned with financial transaction and events which bring about a change in resources. Resources may be wealth, position of the business firm. Such transactions have to be identified first, which all the transactions are taking place, and when they occurs, it is not difficult because there will be proof.
in the form of bill and receipt and all. Means if we talk about in the financial term, these bills and receipts are called vouchers. And these vouchers are essential for accounting as a proof. With the help of these bills and receipt, identification of transaction is very easy. Means what was the amount, what was the transaction date, what was the time, what was the mode of transaction. So these vouchers also help in recording. For example, when you purchase something, you get a bill, and when you make payment, you got a receipt, and that receipt a voucher. So it is very clear now. Accounting is concerned with all financial transactions and events. The second is these transactions are to be measured. First is identified. If you see, identified is underlined, and the second is measured. These transactions are to be measured or expressed in terms of money if done or not done. Generally, these problems will not arise because the statement of proof expresses of transaction in terms of money means that vouchers was a proof taken as a identified. Then second, it is also the proof of measurement means what amount has been transferred. So this is also means vouchers can also be measured. Here is example is given. For example, 10 books are purchased at the rate of 20 each and the bill is prepared for 200. But in the event cannot be expressed in the monetary term, it will be it will not come under the scope of accounting. Means purchasing of anything where money is involved, that is under the accounting, but from which shop and from which market, that is not under the scope of accounting. Accounting is dealing only and only transaction. The transactions which are identified and measured are to be recorded in the form of journals, in the form of cash book, in the form of ledger. So first is identification, second is measurement, and third is recording. Means whatever transaction have been done has to be recorded in the form of journals and as I said, logbook, cash book, even checkbook also there, and one most important document that's called ledger. The recorded transactions are to be classified with a view of group of transactions, and the next is the recording and classification of many transactions will result in a mass of financial data. Means summary is also important. So one has to summarize to understand the accounting, summarize the transactions to understand the accounting. And the last one is analyzed, means analysis. Whatever transaction have been made, first identification, then measurement, then classification, then summarize, and last is analyze. Means is there any loss, is there any profit, or is it break even? So by analyzation of the transactions, one has to be understand that is there any loss or profit, and that should be mentioned in the this recorded form called ledger or uh, journal. Bookkeeping, accounting, and accountancy. This is also important term in the in accounting itself. So, what is bookkeeping? Bookkeeping is a kind of recording. So, let us understand by reading some bookish what is given in your study material.
Very often you will come across the term like bookkeeping, accounting, and accountancy in the literature of accounting. We propose to explain them in the following paragraph. You know, accounting involve a series of activities. It is not very simple. It is a complex. It is a set of many activities. So accounting involve a series of activities as listed out in the scope of accounting. And these activities are: first is identification, as we discuss in this above paragraph. First is identifying, second is measuring, third is recording. Recording means written in the book or journal. Fourth is classifying, five is summarizing, six is analyzing, and seventh is kind of interpretation. Although interpretation was not given in above paragraph, but it is also important. Means what you are interpreting. If the loss is occurred, what may be the reason? If the profit we got, then what may be the reasons and uh, best practices has been done by the management. And the last one is communicating. Communicating to whom? Who is concerned? If you are a account holder of any bank, then you have every right to get list of transactions. So by seeing that list of transactions, you will be able then what amount is in your account and is there any interest? Interest is what money is in the form of interest. So similarly, in the business firms, by taking this accountancy, they also uh, aware about the financial transactions through communications. Accountancy is a big basket as well as bookkeeping is a narrow term. Means bookkeeping is only maintaining the books of account. It only cover the first four activities, 1 to 4. Means bookkeeping contains identification, measuring, recording, and classifying. If these four activities done, then it is known as bookkeeping. If the all eight activities are involved for any transaction, then it is known as accountancy. The term accountancy refers to a systematic or systemized knowledge of accounting and is regarded as an academic subject like economics, statistics, chemistry, etc. It explains why to do of various aspects of accounting. In other words, when accounting refers to actual process of preparing and presenting the accounts, accountancy tell us why and how to prepare a book of account and how is to summarize the accounting information and communicate it to the interested parties or concerned whosoever. So if we summarize that accountancy is a science, a body of systemized, where जहाँ भी कहीं सिस्टमेटिक वर्ड आता है तो वो साइंस की तरफ लेके जाता है बिकॉज साइंस इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ न्यू नॉलेज. सो जहाँ सिस्टमेटिक की बात होती है देन साइंस थोड़ा सा साइंस उसमें दिखने लगता है. सो देयर फोर accountancy is a science, a body of systematic knowledge, whereas accounting is the art of putting such knowledge into practice. मीन्स जब हम उसको प्रैक्टिस में लाते हैं अकाउंटिंग को तब वो आर्ट है बिकॉज चूंकि ये सिस्टमाइज है दैट्स वाई इट इज साइंस. सो अकाउंटेंसी का जो प्रोसेस है दैट इज साइंस एंड होल एक्टिविटी कम्स इनटू द आर्ट. So, in general uses, however, accountancy and accounting are used as synonyms. Means meaning is same because, but of late the term of accounting is becoming more and more popular. Means accountancy पुराना हो चुका है, accounting is taking place of accountancy. So
we should be aware, although both are common, but in new era, accountancy नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं accounting means the way of recording. So there are some self exercise means what define what is accounting, what is the mean of bookkeeping. Bookkeeping के बारे में बताइए आप, अभी तो पढ़े. There are 8 activities which are very important in accountancy. But if we take only 4 activities, means that is identification, and second is measuring, third is classification, and fourth is what is fourth? Third is recording, fourth is classification. These all 4 are taking that it is known as bookkeeping. Accountancy में अगर all 8 activities are involved, then it is known as accountancy. Clear? Sir, then what is accounting? See, accounting and accountancy is same as we discussed. See, देखिए यहाँ देखिए, accountancy and accounting are used as synonyms, but now in business, accountancy old word हो चुका है. Now we are learning accounting. Yes, sir, got it. So यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन, आप देखें यहाँ पे कहीं भी आपको अब अकाउंटेंसी नहीं मिलेगा, यू विल सी ओनली अकाउंटिंग. एक सेकंड. या सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस का यूजर्स क्या हैं, मीन्स व्हाट आर द यूज. यू हैव लर्न दैट मैनी ग्रुप ऑफ पीपल आर इंटरेस्टिंग इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच में हेल्प दैम. ये इसलिए ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेज. एंटरप्राइजेज में क्या पोजीशन है, कितना हमारे पास पैसा है, कितना हमारा आउटगोइंग में है, मीन्स कितना क्रेडिट है, कितना डेबिट होता है हमारा, टू अंडरस्टैंड द करंट पोजीशन, प्रेजेंट पोजीशन. द सेकेंड इम्पोर्टेंस कहिए, यूज कहिए, ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हम लोग लेते हैं, that is to compare its present performance with that of its past years. Past years में हम लोगों ने ग्रोथ किया है या डिक्लाइन किया है या ब्रेक इवन पर हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ये हमको पता चलता है. थर्ड इज टू कंपेयर इट्स प्रेजेंट परफॉर्मेंस विद द सिमिलर एंटरप्राइजेज, जो भी हमारे आसपास में है, जो भी सेम हमारे सेक्टर में जो एंटरप्राइजेस काम कर रही हैं, उनके साथ कंपेयर करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. सो लेट अस सी हु आर सच पार्टीज and how accounting information is useful in various parties. So there are very many parties, means many stakeholders of which are involved, which are taking help of financial accounting information. One is owner. Who is owner? Who is dealing the firm, or who is running the firm, or who is running the enterprises is known as user. Means जितना भी loss, profit, whatever directly impacted होता है owner. So owners contribute capital and assume the risk of business. जितना भी अगर कोई भी जो सबसे पहले उस मार्केट को या उस एंटरप्राइज को या उस फर्म को खड़ा करता है, स्टैंड करता है, दैट इज ओनर. एंड हु इज मैनेजर? मैनेजर इज ए गुड पोस्ट और टॉप पोस्ट ऑफ दैट फर्म who manage all the activities, may be the related to the financial, it may be the related to human resource, it may be related to uh,
support of customer, even feedback, even further based on the feedback for further improvement in the services or production what they are dealing. So that is manager. Third is lender. Lender means who gives the money to the owner. बैंक हो सकता है लेंडर, जितने भी, या फिर कोई और जहाँ से पैसा वो लेता है ऑनर अपने फर्म को चलाने के लिए, that all are known as lender. Then creditors, those who supply goods and service on credit are called creditor. मीन्स किसी फर्म में अगर कोई भी रॉ मटेरियल पहुंचाने वाला जो सेकंड फर्म होता है, दैट इज क्रेडिटर. प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर वो होते हैं जो कोई फर्म चल रही है और उस फर्म में जो आपका जो इन्वेस्ट करने वाला है, इन्वेस्टमेंट में बी इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड और शेयर्स और shares and their participation in the firm, and with on that too with the owner on the percentage basis, known as prospective investigator. Tax authorities is very clear, it is a government body जो उस पर देखते हैं कितना उसका इनकम हो रहा है और एंटरप्राइज का, और उस पर जो टैक्स इनवॉइस उसको देती हैं कि आपको ये टैक्स लाइबिलिटी है. Employee, it is also clear. Manager is also employee, but with the manager there are so many other human resource are required, and that human resource are known as employees of the enterprise or firm as well. Accounting as an information system. See, if we see the word of accounting, accounting basically divided in two terms. One is accounting may be financial, and second accounting में भी मैनेजरियल. मीन्स एक है आपका जहाँ सिर्फ मनी डील होता हो, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड वेयर जहाँ पर आपका सर्विसेज के लिए जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जितने भी एक्टिविटी इन्वॉल्व हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजरल अकाउंटिंग. उस फर्म को मैनेज करने के लिए जितने भी आपके एफर्ट्स हैं, ऑल कम्स अंडर द मैनेजरल अकाउंटिंग. सर इसमें हाँ हाँ, इसमें हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना? दोनों पढ़ेंगे हम. जब हम टर्म जब फाइनेंशियल की बात करते हैं, हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, देन वी विल लर्न ऑल. आइदर इट मे बी द फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इट मे बी, एंड बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन देखता है, दैट इज मैनेजमेंट, है ना. और अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जानेंगे तो हमें मैनेजमेंट की जो स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट की जो वर्क्स हैं, उनको भी हमें समझना होगा, तभी हम समझ पाएंगे एज ए होल अकाउंटिंग होती क्या है. यस सर. ओके, सो ये एक बहुत सिंपल सा चार्ट है एंड इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव चार्ट. यहाँ हमने अकाउंटिंग एंड नॉन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का एक चार्ट बनाया है. पहले तो हमने बताया कि अकाउंटिंग दो पार्ट में डिवाइड हुई है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट accounting. If you talk financial accounting also have some subsections, जैसे आपने क्रेडिटर पढ़ा, शेयर होल्डर्स पढ़ा, टैक्स अथॉरिटीज पढ़ा, और एक्सटर्नल यूजर्स पढ़ा, जो आपके जो प्रोस्पेक्टिव वो हो सकते हैं, कस्टमर्स भी हो सकते हैं, और आपके इवन जो आपका जो क्लाइंटेल है वो भी अदर एक्सटर्नल यूजर में जाएगा. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर हम देखें तो डेट इज आल्सो अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. मैनेजरल डिसीजन मेकिंग मीन्स एक सेक्शन ऐसा है जो उस मैनेजमेंट या उस इंटरप्रिटेशन या उस फर्म पर जो डिसीजन लेता है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग. एंड सेकंड मैनेजर प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूशन, एक जो उसको इम्प्लीमेंट करता है एट द ग्रास रूट, और जो सबसे जो नीचे का जो लेवल है उससे अपने कस्टमर तक पहुंचने के लिए जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें जो भी उसका इवैल्यूएशन है
इवन बेस्ड ऑन फीडबैक जो भी चेंजेस उसको करने हैं मैनेजमेंट में या अपने प्रोडक्शंस में या अपनी सर्विसेज में, that also deal by managerial planning performance evaluation, although decision has to be taken by managerial decision making. So this is the chart of means total accounting किस तरह से काम करता है. Accounting as an information system, हमने कहा कि अकाउंटिंग बेसिकली ट्रांजैक्शंस का फ्लो, इन सब के इंफॉर्मेशन हमने देखा. देयर आर टोटल 8 एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग, but the last one is kind of communication. Communication is also important. If the 7 activity has been done but no communication is with the customer or the concerned, then one is no aware about the counting, और मीन्स क्या क्या हैपन हुआ, क्लासिफिकेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, बट since the information is not with the customer or clientele, then no meaning of accounting. So basically, if we there is a good word for accounting, that accounting as an information system. ये ज़्यादा इसको अगर हम सोचें तो ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में काम करता है अकाउंटिंग. अगर हम इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम में लें तो सर्टेनली देर आर सम इम्पोर्टेंट यूजेस, सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. व्हाट दे आर? नंबर 1, मैनेजरियल डिसीजन. मैंने कहा इस चार्ट को अगर आप देखें, अगर आपने कोई भी डिसीजन लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मैनेजरियल प्लानिंग मैनेजमेंट वाले लोग, उनको आपने डील करने के लिए दिया और ग्रास रूट लेवल पर उन्होंने सर्विस को पहुंचाया, वहां से उन्होंने कुछ फीडबैक लिया. फीडबैक अगेन गोज टू मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. तो डिसीजन मेकिंग तभी पॉसिबल है जब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी. अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली, फीडबैक नहीं मिली, तो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग नहीं होगा. मैनेजमेंट इज कंटिन्यूसली कन्फ्रंटेड विद द नीड टू मेक डिसीजंस, और वो डिसीजंस कब से होते हैं? वो बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम द ग्रास रूट. दूसरा, मैनेजरियल प्लानिंग, कंट्रोल एंड इंटरनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. ये भी तभी संभव है. प्लानिंग हम कब करते हैं? जब हमें अपने किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को, हमें जब अपने क्लाइंटल तक, अपना जो कस्टमर है उस तक पहुंचाना हो, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है. उसको कंट्रोल्ड वे में, और उसको एक इंटरनल परफॉर्मेंस, यानी कि हम लोग टारगेट भी देते हैं अपने जो हमारे जो बिलो लेवल पर जो हमारे एम्प्लॉय हैं डेट, और जो हमारे फर्म के एजेंट हो सकते हैं या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या एक तरह से सेल्समैन्स भी उनको आप कह सकते हैं. उनको जब हम टारगेट देते हैं तो उनका हम टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस भी इवैल्यूएशन करते हैं. मीन्स दैट इज मैनेजरियल प्लानिंग यूनिट, जो उनका कंट्रोल भी करती है, उनको इवैल्यूएशन भी करती है. तो यहाँ पे एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल दिया है टू अंडरस्टैंड इन बेटर वे. Where marketing manager is given a target of sales revenue of rupees 10 crores. The amount of rupees 10 crore will serve as a standard for evaluating the performance of marketing manager. If annual sales revenue vary significantly from 10 crore, steps will be taken to ascertain the cause for the difference. Means बहुत सिंपल है ये, कि अगर आपने जो टारगेट दिया है उसको अगर अचीव कर लिया है, उससे अगर आप आगे पहुंचे हैं, तो उसी परफॉर्मेंस बेस पर फर्दर उसके इवैल्यूएशन होकर के इवन उसको इंक्रीमेंट, उनको फर्दर प्रमोशन, इसलिए भी ज़रूरी है इंटरनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. सो थर्ड है एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. हमने पढ़ा मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, क्यों होता है. देन मैनेजर प्लानिंग, कंट्रोल और इंटरनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे होता है. द थर्ड वन इज एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. क्योंकि जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे ट्रांजैक्शंस की, हमें फ्लो की, तो यहाँ ये दिस आल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. Accounting has always been used to supply information to those who are interested in the affair of the company. आप देखेंगे कि जब कंपनी के इवन जो शेयर्स हैं वो चढ़ते हैं या घटते हैं, उन सब की भी इंफॉर्मेशन कंपनी की वेबसाइट पर, कंपनी का जो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब पर वो टाइम टू टाइम मिलता है आपको देने. वेरियस लॉज, उसमें बहुत सारे लॉज भी हैं जो बने हुए हैं, और उन्हीं लॉज के अंदर में आपको
एक सेकंड। या सो दिस इज थर्ड वन, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो लोग बाहर से कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं उन सबको इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टेटमेंट के रूप में चाहिए, और डेट टू विद इन द लॉज ऑफ गवर्नमेंट और फर्म। इन सब के बीच में जो इंफॉर्मेशन क्रेडिटर्स को चाहिए, इसलिए भी हमारी एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारे जो इवन जो डिविडेंड हैं जो घटते हैं बढ़ते हैं, लिक्विडिटी है, इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट है, लॉस है, ये सब चीज़ें की इंफॉर्मेशन अगर हमारे स्टेक होल्डर हैं या जो हमारे म्यूचुअल फंड के जो पार्टनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन सबको भी एक तरह से टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहती है उससे, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। सर जी, एक्सटर्नल मतलब फॉरेन? दोबारा बोलें, पार्डन। फॉरेन मतलब No, 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 no. It may be foreign, it may be national. As I said कि कोई भी कंपनी है, उस कंपनी का एनुअल स्टेटमेंट जब बाहर आता है ना, कि वो कंपनी लॉस में है या कंपनी प्रॉफिट में है ना, और जो यस जानना सर। चाहते हैं उस कंपनी में कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, सपोज आपने देखा है कि कंपनी अच्छी से ग्रो कर रही है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर कंपनी लॉस में है तो कई बार इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि अभी हमें नहीं करना चाहिए, और वाइस वर्सा कुछ लोग जो कंपनी लॉस में चल रही होती है उस समय इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बेसिकली यस एक्सटर्नल सर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंपनीज ग्रोथ। और वो कौन अंडरस्टैंड करता है? जो बाहर, कंपनी के बाहर जो बैठा है, वो स्टेक होल्डर हो सकता है, शेयर होल्डर हो सकता है, आपका म्यूचुअल फंड का पार्टनर हो सकता है, ठीक है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। ओके। यस सर। यस सर। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज आल्सो, अगर मैं देखूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाट डज इट मीन। एक सेकेंड। So there are three branches. One is financial accounting, second is cost accounting, and third one is management accounting. Although मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो बेसिकली पर्पज़ है वो क्या है, वो थोड़ा समझने की ज़रूरत है। द नेट रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड कैन बी असरटेन्ड। मीन्स हमें पता चलता है, अगर एक साल का हम उसका ट्रांजैक्शंस का फ्लो चार्ट देखें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, तो उससे पता चलता है कि कंपनी लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है, और वो एनुअल होता है। वो ऐसा नहीं कि आप उसको हर महीने देख लें, हर महीने से पता चल रहे हैं कि आपकी, क्योंकि किसी मंथ में अप है, किसी मंथ में डाउन है, इसलिए हमेशा से परफॉर्मेंस इवेल्युएट की जाती है किसी भी कंपनी की in term of financial accounting, that is annual. The financial portion means उसके कंपनी के क्या क्या असेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, और क्या कैपिटल पोजीशंस हैं बिजनेस की, एज एट द एंड ऑफ द पीरियड कैन बी असर्टेन। मीन्स हमने देखा कि हमने एक साल में कितना हमने एसेट्स हमने लिए जो कंपनी के लिए यूजफुल हैं, कितने हमने कैपिटल पोजीशंस गेन की, कितनी हमारे पे लाइबिलिटी है। These all comes under the financial positions. Relevant financial information can also be provided to management and other interested parties. Under interested parties, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, that may be the shareholders and that may be the partners of the firm. कॉस्ट अकाउंटिंग, द पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में थोड़ा सा बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, उसको समझने की ज़रूरत है।
The purpose of cost accounting is to analyze the expenditure as so as to ascertain the cost of each product, operations, service. देखिए वहां सिर्फ हम केवल लॉस एंड प्रॉफिट के केस में हम देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। हम कॉस्ट में अगर देखें तो टोटल हमारा कॉस्ट कितना उसमें लग रहा है, प्रोडक्ट में लग रहा है, उसकी सर्विस के लिए लग रहा है, उसके ऑपरेशंस के लिए लग रहा है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज नथिंग बट द कॉस्ट प्लस ए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अनलेस द कॉस्ट इज नॉन। Price cannot be fixed rationally. Cost accounting help not only in ascertaining the cost but also to assist the management in controlling the cost. Means बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब ये है कि आपने जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं दैट इज कम्स अंडर द फाइनेंशियल लाइबिलिटी, जिसमें अभी एसेट्स भी हो सकते हैं, लाइबिलिटी भी हो सकती हैं। लेकिन जो आप सर्विस दे रहे हैं या जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी एक निश्चित कॉस्ट आपको बनानी पड़ती है, फर्म को बनानी पड़ती है, एंड दैट कम्स अंडर द काउंट कॉस्ट अकाउंटिंग। क्योंकि जैसे आपने सोचा कि सपोज कोई फार्मास्यूटिकल का कोई शॉप है, उसमें जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं दैट इज वन थिंग, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड जो एसेट्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी होगी ताकि वो प्रॉफिट हो या ब्रेक इवन में हो, दैट कम्स अंडर द कॉस्ट अकाउंटिंग। आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट हम रुकते हैं ना, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir.
किसरा, आर यू देयर? Yes, sir. एक्चुअली आपको पता होगा कि आज आज़ादी का 75वां महोत्सव था ना, उसमें एक प्रण लिया है, एक शपथ ली गई है कि जिसमें 5 शपथ थी, उसके लिए आपके लिए थोड़ा सा ब्रेक दिया गया। चलिए, कम टू द टॉपिक। ये आपकी जो स्टडी मटेरियल है, इसमें चेक योर प्रोग्रेस से रिलेटेड आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको दिक्कत आए, कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी आए, यू कैन आस्क मी। जो नेक्स्ट जो क्लास होगी, और एकेडमिक काउंसलिंग में ऑलवेज एक्सपेक्टेड है कि आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, आप देख रहे हैं यहाँ ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, इसमें आप नोट करें जब भी आपकी काउंसलिंग आगे फर्दर कभी भी हो। यस, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग? द फर्स्ट एडवांटेज, the following are the advantage of the properly maintained accounting system. The first one is replaces memory. मीन्स आप देखते हैं कई बार क्या होता है कि जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो कई बार हमें याद नहीं होता है, नहीं हम उसको रखते हैं, क्योंकि वी डू मैनी transactions, many activity in a day, in a month, in a year. So since all the financial events are recorded in the book मैंने बताया, that may be the ledger, that may be the cash book or any other book. सो उसके लिए फिर आपको मेमोरी के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑल द फाइनेंशियल इवेंट्स आर रिकॉर्डिंग। इसलिए ये मेमोरी को रिप्लेस करने का भी काम करती है। आपको ये हमेशा मेमोराइज कराएगा कि व्हाट फाइनेंशियल इवेंट्स हैव बीन ऑकर्ड इन द पास्ट। सेकंड है प्रोवाइड कंट्रोल ओवर द एसेट्स। जब आप अकाउंटिंग आपके सामने है एक लेजर के रूप में या एक बुक के रूप में, तो आप यू विल बी अवेयर दैट what is the amount in cash, what is the amount in bank, and what is the amount in stock and all, even what is amount has to be collected from the जो भी आपके जो फर्म है जहां आपने उनको बिजनेस पार्टनर बनाया है। ये सब एक कंट्रोल करने का, मान लो आपने ऑलरेडी किसी को, सपोज करिए आप एक फर्म चलाते हैं, यू आर रनिंग ए फर्म एंड यू हैव गिवन 10,000 जो सर रुपीज़ का जो प्रोडक्ट था या सर्विस था, वो आपने फर्दर जो रिटेल मैनेजमेंट देख रहे हैं उनको आपने दे दिया। इस अकाउंटिंग से आप जान पाएंगे कि आपको 10,000 रुपीज़ रिकवर करने हैं। आप उसको फर्दर 10,000 का और एसेट्स या और उसको आप प्रोडक्ट या और सर्विस नहीं देंगे अनटिल अनलेस द पास्ट अकाउंट हैज़ टू बी रिकवर्ड। तो इसलिए ये कंट्रोल करता है, अदरवाइज आप तो याद भी नहीं रखेंगे किससे कितना कितना लेना है, कितना देना है। सो दिस इज वन मोर इम्पॉर्टेंट और एडवांटेज ऑफ द अकाउंटिंग। थर्ड इज फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, ऑफ कोर्स इट आल्सो हेल्प फॉर द मेकिंग और क्रिएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन्स बैलेंस शीट बनाने में ये हेल्प करता है। द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जैसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट कैन इजीली प्रिपेयर्ड। बैलेंस शीट का कोई है आपको आइडिया? बेसिकली बैलेंस शीट बताता है कि आपने कितना आपने इनकमिंग में लिया और कितना आउटगोइंग में आपका मनी का या जो सर्विसेज है उसका फ्लो हुआ। उस बैलेंस शीट्स को हम तभी बना पाएंगे जब हमारे पास अकाउंटिंग मनी रिकॉर्डिंग में कोई चीज़ ऑलरेडी, कैश बुक या चेक बुक में कोई ऑलरेडी, या लेजर में कोई रिकॉर्डेड आपके पास इवेंट्स ऑलरेडी हैं, एंड दैट विल हेल्प फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हालांकि इन द कमिंग डेज यू विल बी एबल टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट एज पर द योर स्टडी मटेरियल और सिलेबस कंसर्न। So these statements enable the businessman to know the net result of business during the accounting period and its financial positions. Fourth है meet the informations requirement, यानी कि various interested parties जो जैसे आप देखते हैं कि बहुत बार फर्म को पूछा जाता है कि आप अपना फाइनेंशियल जो है वो फ्लो चार्ट आप डिस्प्ले कीजिए, अपनी वेबसाइट पर कीजिए। इसीलिए सीए, आज देखते हैं नया ट्रेंड है, सीए भी हायर किए जाते हैं जो
कंपनी का बैलेंस शीट या कंपनी की जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करने में वो हेल्प करते हैं। तो जब तक अकाउंटिंग नहीं होगा, ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये आउट नहीं हो पाएगी या प्रॉपरली नहीं बन पाएगी। सो this is also next importance or advantage of accounting. So various interested parties such as owners, even owner को भी कई बार जानना होता है कि जरा मेरा कंपनी का फ्लो चार्ट बताइए कि मेरी कंपनी किस प्रेजेंट स्टेटस क्या है। Owners, management, lenders, creditors, etc. They all are eager anytime to know the status of firm or their financial statement. तो accounting उन लोगों में भी मदद करता है कि उनको फ्लो चार्ट बना के दिया जा सके किसी भी समय, अगर हमारे पास अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा है। टू प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल विच हेल्प इवन अकाउंटिंग में जो बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन के बेस पर बहुत सारे डिसीजंस मैनेजमेंट लेवल पर, ऑनर के लेवल पर लिए जाते हैं, ताकि अगर कोई चेंज करना हो या कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट करना हो तो दैट कैन टेक प्लेस। फैसिलिटेट ए कंपैरेटिव स्टडी विदाउट दिस फाइनेंशियल चार्ट मीन्स अकाउंटिंग के बिना हम कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे जो हमारे जो सेम सेक्टर में जो अदर कंपनीज काम कर रही हैं उनके साथ हम लोग अगर कंपेयर करना चाहें तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट अकाउंटिंग। Financial statement prepared will enable the enterprise to compare its present position, whether it is in loss or profit, and what that of its past, and with the similar organization इनमें comparison past से हम compare कर सकते हैं, similar organization से compare कर सकते हैं। These also help in this activity. Assist the management in many ways. ये जो फाइनेंशियल का जो अकाउंटिंग है ये मैनेजमेंट को कई रूप में असिस्ट करता है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कुछ डिसीजंस लेने हो सकते हैं, अगर कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेने हो सकते हैं, अगर कंपनी लॉस में जा रही है उसके रिगार्डिंग अगर कुछ डिसीजन लेने हो सकते हैं, दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अकाउंटेंसी। डिफ़िकल्ट टू कॉन्सियल फ्रॉड और थेफ्ट। आप देखते हैं कि बहुत सारे फ्रॉड, बहुत सारी थेफ्ट आपको आती हैं, लेकिन अगर आपका फ्लो चार्ट क्लियर है आप उससे देख पाएंगे कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है या कहीं कोई आपको चीट तो नहीं कर रहा है फर्म को, तो ये उसमें भी हेल्प होता है। टैक्स मैटर्स, ऐसे ही हम सोचें कि अरे हमें कितने रुपए का हमारी कंपनी को इतने करोड़ का लॉस हो गया या इतने करोड़ का प्रॉफिट हो गया, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो उस पर टैक्स लेवी है, टैक्स तो उस पर लगेगा। बट ऐसे नहीं, जब टैक्स ये जो जितने अकाउंटेंसी है ये एकदम एक्चुअल इंफॉर्मेशन बताती है कि इतना प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट पर इतना टैक्स लगेगा, तो ये यहाँ भी हेल्पफुल है। इधर चला गया ये, या असर्टेनिंग वैल्यू ऑफ बिजनेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि हम किसी बिजनेस का हम बता सकते हैं कि इतने करोड़ का ये बिजनेस है या इतने करोड़ की ये फर्म है, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ अकाउंटेंसी ओनली। तो देर आर 9, 10, ये भी जो 8, 8, 9 जो हैं, दीज आर द यूज एडवांटेज और इम्पोर्टेंस और आप कहे कि क्वालिटी हैं ये अकाउंटेंसी की, जिसके बेसिस पर हम लोग जान भी सकते हैं एज ए कस्टमर और एज ए ऑनर हम बता भी सकते हैं अपने क्लाइंटेल को कि दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द फर्म। Although if the importance of accounting are there, to definitely limitations also take place. So what are the limitations of accounting? देखिए, अकाउंटेंसी, जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये ज़्यादातर बात करते हैं हम लोग ट्रांजैक्शंस और डेट ट्रांजैक्शंस मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जहाँ मनी इन्वॉल्व हो। इसकी एक लिमिटेशन है, पहली लिमिटेशन है, they do not record transactions and events which are not of a financial character. अकाउंटेंसी में जो हम लोग इवन आपने देखा होगा कि सम MOUs होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट फर्म्स के बीच में, डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर के बीच में, दैट MOU और दैट रूल्स एंड रेगुलेशन डज नॉट कम्स अंडर द अकाउंटिंग। ये एक लिमिटेशंस है कि अगर अकाउंटिंग में अगर
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अलावा जो अदर ट्रांजैक्शंस होते हैं, सर्विस ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो इसमें नहीं आते हैं। दैट इज द लिमिटेशंस। They do not reveal the complete picture because facts like quality of human resource, license, process, location advantage, business context, these all does not comes under the accounting. The second is data is historical in nature. The accountants adopt historical cost as the basis in valuing or reporting all assets and liabilities. They do not reflect current values. वो हमेशा बताते हैं कि हमने ये मशीन इतने की ली, वो ये नहीं बता पाते अकाउंटिंग के थ्रू कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू अब इतनी है, हमारे जो लाइबिलिटी है उसकी वैल्यू इतनी है। बिल्डिंग है, जैसे आपने बिल्डिंग कभी आपने ली, वो आपकी अपनी हो गई है, उसके बावजूद आप उसको कभी उसमें नहीं जोड़ते हैं कि ये हमारी अकाउंटिंग का पार्ट है। उसको इवन बैलेंस शीट में भी नहीं लेते हैं। बैलेंस शीट में हम लेते हैं कि जो हमारा बैंक टू बैंक या बैंक टू कस्टमर और बैंक टू फर्म जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है वही अकाउंटिंग में आता है। आपने देखा अकाउंटिंग में आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट कभी नहीं दिखाते कि हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट इतनी है। फैक्ट्स रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड पर्सनल जजमेंट। ये एक और अच्छी चीज़ है कि इसके बेस पर हम लोग जज कर लेते हैं कि ये कंपनी अप जाएगी या डाउन जाएगी। हम कभी भी नहीं देखते कि उसका ह्यूमन रिसोर्स कैसा है। कई बार क्या होता है कि जो जो फर्स्ट जनरेशन वाले जो लोग हैं कंपनी में या फर्म में, वो बहुत दे वर्क हार्ड एंड ड्यू टू देयर वर्क हार्ड कंपनी होल्ड गुड प्लेस इन द मार्केट। बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो प्लेस है या वो जो वर्क हार्ड का जो कल्चर है वो कंटिन्यू करे। वाइस वर्सा ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट जनरेशन ने काम नहीं किया, सेकंड जनरेशन आकर उसमें वर्क हार्ड करती है, बट ये अकाउंटेंसी का पार्ट नहीं होता है कभी भी। Data provided in the financial statement is insufficient for proper analysis and decision making। जो डेटा फाइनेंशियल के रूप में जो आता है, क्योंकि वो डेटा होता है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव डेटा नहीं होता, और क्वांटिटेटिव डेटा के बेस में हम क्वालिटेटिव डिसीजन नहीं ले पाते हैं। दिस इज आल्सो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिकली देखिए दो तरह के अकाउंटिंग के दो बेस हैं। पहला बेस है कैश, जो कैश फ्लो होता है। कैश हम समझते हैं मीन्स रुपीज़ में या जो भी हमारा फ्लो हो रहा है, दैट इज कैश बेसिस। दूसरा है एक्चुअल बेसिस। दो ही बेस हैं अकाउंटिंग के, और जो कैश बेसिस है वो हम सब समझते हैं, जो मनी है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसीव किया हमने, फिर उसको हमने अकाउंट बैंक में जमा किया, उसको रिकॉर्ड किया हमने, ये इतना पैसा कैश आया, इतना कैश हमने पे किया कैश में। These all comes the cash basis of accounting. The second is accrual basis। ये आपका एक तरह से जो आज हम कहते हैं कि ऑनलाइन की बात करते हैं, या हम लोग ट्रांजैक्शन जो हमारे बैंक टू बैंक होते हैं, या जो मर्केंटाइल सिस्टम, इसका एक नाम और है, ये है मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे जो बाइंग सेलिंग और जितने भी अदर ट्रांजैक्शंस अदर ऑपरेशंस जो भी होते हैं वो बिना कैश के होते हैं। यानी कि दैट मे बी द ऑनलाइन, दैट मे बी द थ्रू ये जो आपके जो गेटवे हैं, डिफरेंट गेटवे, दे टेक प्लेस थ्रू डिफरेंट गेटवे। दैट सिस्टम इज नोन एज एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दोनों में डिफरेंस एक ही है कि एक में कैश होता है और एक बिना कैश का होता है। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखिए पहले हमने क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वांटिटेटिव एडवांटेज पढ़े हमने। यहाँ हम अगर क्वालिटेटिव की बात करें तो जो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, पहली है अंडरस्टेबल। हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हमारे जो फर्म है या जो बिजनेस है उसका एक्चुअल स्टेटस क्या है। Accounting information must be understandable. This is an important qualitative characteristics for small business owners. Many small business owners do not have a strong accounting background. Financial information that is too technical or cannot be understood by the lay person can be ineffective for business owners.
Small business owners often use professional accountants to complete various accounting functions. सो आप ये जो हम बात कर रहे हैं कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो अंडरस्टेबल होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत टिपिकल हो। ऑल्दो जैसे इसमें बताया कि इसके लिए जो जो लोग वेल वर्स नहीं है अकाउंटिंग सिस्टम से, वो उसके लिए प्रॉपर अकाउंटेंट्स या प्रॉपर सीए या प्रॉपर जो क्वालिफाइड पर्सन्स हैं वो उसको रखते हैं, और वो भी उनको फिर समझा पाते हैं कि दिस इज़ द अकाउंट सिचुएशन। यूजफुलनेस, आप देख रहे हैं कि बिजनेस, जो भी बिजनेस है उसके लिए जो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो बहुत यूजफुल होती है, ऑनर्स के लिए भी, और जो सेकंड पार्ट है जो उसमें जो क्लाइंटेल है या जो कस्टमर है या जो शेयर होल्डर है जो पार्टनर है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होती है ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दोनों के लिए यूजफुल है। बिजनेस ओनर्स नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज एप्लीकेबल टू द बिजनेस डिसीजंस एट हैंड। They can request financial statement, accounting schedule, reconciliation of cost benefit of an analysis. बेसिकली हमें कोई भी डिसीजन एज ए मैनेजर, एज ए ऑनर, अगर कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। रेलेवेंस, रेलेवेंस मीन्स accounting information should relate to a specific period of time। अब अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो अगर हम आज का स्टेटस जानना चाहते हैं तो 10 साल से पहले का जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कंपैरिजन के लिए तो ठीक होगा, बट इन द प्रेजेंट टाइम वो डिसीजन लेने के लिए या कुछ मॉडिफिकेशन लेने के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। मीन्स तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रिलेवेंस तभी है जब जिस पीरियड की चाहिए हमें, स्पेसिफिक टाइम पीरियड की, या जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए अपने बिजनेस से रिलेटेड, अगर वो उसी की ही बारे में इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज रेलेवेंट, अदरवाइज दैट मे नॉट बी यूजफुल फॉर अस। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी इज अ टर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मीन्स वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन अगर किसी फर्म के वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, मीन्स इंफॉर्मेशन इज रिलायबल। If the information is coming from other sources, that may be the some WhatsApp, some other social media, that is floated by information floated by other person to harm the company or to just uh, hike the company position, so that may not be reliable. So accounting information must be reliable। और ये जो आपका बिजनेस ऑनर है वो रीजनेबली अश्योर भी करे टाइम टू टाइम अपने जो सोशल मीडिया है, जो अपना जो ईमेल, सॉरी वेबसाइट है, कि दैट इंफॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट पिक्चर प्रोवाइड कराता है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का। सो इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। कंपेरेबल, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो आपका जो अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है वो कंपेयर करने में आसानी प्रोवाइड करती है हमको। एंड कंपैरिजन किससे के साथ? अपने खुद के पास्ट के साथ, या जो सिमिलर फर्म जो उस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रही हैं उनके साथ जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि वो कंपनी भी हमारे सेम में है, तो उनको हम तभी हम कंपेरेबल कर पाएंगे जब हमारे पास अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, राइट। देन कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टर्म। कंसिस्टेंसी मीन्स आपका बिजनेस लगातार डाउन हो रहा है या लगातार बढ़ रहा है, ये दैट इज आल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो इसको भी हम कंसिस्टेंसी अगर हमारे बिजनेस में चल रही है, दैट में बी इन द फॉर्म ऑफ लॉस और दैट में बी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, उस कंसिस्टेंसी के भी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। उन रीजन्स को हम तब समझ पाएंगे जब हमारे पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड होगा, एंड दैट रिकॉर्ड में बी इन द फॉर्म ऑफ लेजर और इन द फॉर्म ऑफ कैश बुक एंड लॉग बुक। सो ये ऑनर के लिए भी इम्पोर्टेंट है जानना, और ये जो आपका जो काउंटर पार्ट है कस्टमर, उसको भी लिए भी जानना ज़रूरी है कि कल कितना लॉस हुआ या कल कितना प्रॉफिट कितना हुआ, आज कितना प्रॉफिट हुआ, और उसी के बेस पे हम लोग फॉरकास्ट भी कर सकते हैं कि हमारी कंपनी इतने दिनों में ये स्टेटस, ये लेवल अचीव कर लेगी। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फॉरकास्टिंग आल्सो। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ये तो हमने सर पहले भी पढ़ा है कि एक रिकॉर्डिंग मीन्स इन द फॉर्म ऑफ रिटन, जो हम जो लिखते हैं, जो भी कुछ हम लोग अपने
वर्क बुक में, लॉग बुक में या लेजर में, जो भी आपका डॉक्यूमेंट उस फर्म में यूज हो रहा है, जिसको हम लिख रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग क्लास। सर हाँ जी। सर लेकिन अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आइडेंटिफिकेशन और फिर मेजरिंग आया था, फिर रिकॉर्डिंग आया था। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ ही टर्म ली है ना, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग जैसे रिकॉर्डिंग को लिया है। बिल्कुल सही कह रहे हो, अकाउंटिंग में जब ये 8 एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे, देन इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग, राइट। बट हियर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में हमने इन्होंने रिकॉर्डिंग लिया है, क्लासिफाइंग लिया है, समराइजिंग लिया है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन लिया है, कम्युनिकेट लिया है। जो आप जो बोल रहे हैं, दो आइडेंटिफिकेशन इन्होंने नहीं लिया है, वो इसलिए नहीं लिया है, वो अकाउंटिंग उसके लिए है जब हम कोई फर्म स्टार्ट करते हैं, राइट। यहाँ कोई फर्म अगर पहले से चल रही है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, तो वहाँ जो फर्स्ट जो स्टेप होगा, दैट इज रिकॉर्डिंग ओनली। ओके। यस सर, गॉट इट। ओके, सो रिकॉर्डिंग, दिस इज द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये हमने कहा, ये बेसिकली अकाउंटिंग एक्चुअली शुरू ही यहीं से होती है। देन क्लासीफाइंग आपने पढ़ा है, समराइजिंग, उसको किस तरह से हम लोग समराइज करते हैं, उसके जो बैलेंस शीट बनाते हैं या जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज समराइजिंग। अलग अलग उसमें क्लासीफाई करके हम उसको समराइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर बाद में इंटरप्रिटेशन करते हैं। एनालिसिस मीन्स लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, किन रीजन से वो लॉस या प्रॉफिट हुआ, उसका फिर इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। एंड उसके फिर कम्युनिकेट करते हैं अपने कस्टमर को भी, अपने मैनेजमेंट को भी और ऑनर को भी। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ये तो आपका लेटेस्ट सम हो गया। ओके, ये आपके इसके बारे में। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट? ओके, ये दूसरा यूनिट है, अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रूल्स। ओके, ऐसा करते हैं, इसको हम कल पढ़ते हैं ना, अकाउंटिंग प्रोसेस। थोड़ा आप भी पढ़िएगा इसको, और उसके बाद हम चूंकि यूनिट को जल्दी खत्म कर पाएंगे। ओके। यस सर। हाँ, ओके, गुड डे। सर हाँ, बोले। हमारा पेपर कैसे आएगा? पेपर कैसा बनेगा, कितने मार्क्स का बनेगा? देखिए, ऑल जितने भी ओल्ड पेपर्स हैं, दैट ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आर अवेलेबल ऑन इग्नू वेबसाइट, यू कैन सी। जो आपका डाउनलोड जो सेक्शन है इग्नू में, या वेबसाइट पे जो डाउनलोड वाला है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो जहाँ आपको असाइनमेंट आप खोलते हैं ना, उसी के डाउन में है ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स यू कैन वॉच एंड यू कैन एनालाइज द इवन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए कि क्वेश्चंस का पैटर्न किस तरह का है। पैटर्न पैटर्न इज सेम, ऑलवेज सेम, बट क्वेश्चंस ऑलवेज चेंज। पैटर्न इज सेम कि इतने नंबर का सेक्शन ए में होगा, इतने का बी में होगा, इतने का सी में होगा, इफ सेक्शंस में डिवाइडेड है तो। अदरवाइज 5 क्वेश्चंस करने हैं या 10 क्वेश्चंस करने हैं, दैट पैटर्न इज सेम। मार्किंग सिस्टम इज सेम। क्वेश्चंस आपको डिफर हर बार आपको चेंज मिलेंगे। इसलिए जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि क्या हमको सारा पढ़ना है, यस, आपके लिए पूरा सिलेबस इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो बीच बीच में बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, वो तो कोई भी काउंसलर है या इवन पढ़ाने वाले टीचर्स बीच बीच में बताते रहते हैं कि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड यू, बिकॉज इट मे कम्स इन योर टर्म एंड एग्जामिनेशंस। यस सर, थैंक यू सर। ओके, गुड डे।